آئیے ابھی وقت ہے کہ ہم کلام مقدس کی طرف متوجہ ہوں، رجوع لائیں تاکہ کلام مقدس کو ہم اپنی زندگیوں میں جگہ دے سکیں۔ کلام مقدس میں سے آج جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے اپنی تربیت اور رہنمائی کے لیے، وہ ہے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 2 باب، اس کی 13ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ اس نے ہیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں کو اور صرافوں کو بیٹھے پایا اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو، یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا اور صرافوں کی نگدی بکھیر دی اور ان کے تختے الٹ دیے اور کبوتر فروشوں سے کہا، ان کو باہر لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ۔ اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے، تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے بس جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر میں تیرے قدموں میں ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ اے خداوند، آج جتنے لوگ تیرے قدموں میں سربسجود ہیں، جو اے خداوند گاہے بگاہے اے خداوند مختلف وسائل سے اے خداوند تیرے کلام کو سن رہے ہیں، جو اے خداوند ہمارے ساتھ شامل ہیں، جو اے خداوند اس بڑی اے خداوند دنیا کے اندر اے خداوند تیرے جلال کے لیے اے خداوند فکر مند ہیں، اے خداوند ان سب کے لیے برکت چاہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آج کا کلام اے خداوند ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو اور تیرے بیٹے کے جلال کا سبب ٹھہرے۔ اے خداوند، وہ لوگ جو آج ہمارے ساتھ اے خداوند اس جگہ پر اے خداوند شامل نہیں ہو پائے، ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں، اے خداوند ان کے لیے اے خداوند دعا گو ہوں۔ تو اے خداوند انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اے خداوند ہر طرح کی مشکلات میں ان کا حامی و ناصر ہے، اور اے خداوند صحت و تندرستی میں بحال رکھ، اور اے خداوند تمام مصروفیات میں اے خداوند ان کا ساتھ دے، تاکہ اے خداوند وہ تیرے قدموں میں سربسجود ہوں اور اے خداوند تیرے مہیا کردہ وسائل سے اے خداوند کلام کو سنیں۔ میری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل دے، اپنے نام کو جلال بخش اور میری سہایتا کر۔ میرا روح جان جسم کامل استاد روح القدس کے قبضہ میں رہے اور تیرا بیٹا عزت اور جلال پائے، مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ بہت مشہور حوالہ خداوند یسوع مسیح کے زندگی کے دور کے اندر یہ حوالہ جو ہے ایک نمایاں پوزیشن رکھتا ہے۔ یہ کہانی، یہ حادثہ، یہ ورد ایک نمایاں پوزیشن رکھتا ہے۔ اس وجہ سے یہ حوالہ جو ہے، یہ ورد جو ہے، وہ بڑا مقبول نظر ہے ہر ایک زندگی کے شعبے میں۔ اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوحنا جو ہے، دراصل یوحنا کی انجیل اگر اس کو روح القدس کی انجیل کہا جائے تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی اچھی ایک ایسی سمت یا خیال ہے کہ ہم اسے روح القدس کی انجیل کہیں، روح القدس کی گواہی کہیں، روح القدس کی خداوند یسوع مسیح کے لیے کام اور خدمت کہیں تو یہ بے جا نہ ہوگا، کیونکہ یوحنا جو ہے
وہ ایک کہانی کا تسلسل بیان نہیں کرتا، بلکہ وہ کہانی کو اس باتوں کے مطابق استعمال کرتا ہے جو اس کے سامنے اس کی خدمت اور روح القدس کو اس دور میں درپیش تھی۔ وہ خداوند یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ جو ہے یروشلم میں بیان نہیں کرتا، بلکہ وہ ہیکل کی صفائی جو ہے اس کو بتاتا ہے کہ کیوں اس نے ہیکل میں جا کر ہیکل کا ایک ملاحظہ کیا، اس نے اس کو دیکھا اور پھر اس نے رسیوں کا کوڑا بنایا۔ حالانکہ یہودی بڑے جوش میں تھے ان دنوں میں، کیونکہ عید فصح ایک بڑا تہوار تھا اور یہ سال کے شروع میں ہی آ جاتا تھا، پہلے مہینے کے اندر یہ تہوار تھا اور یہ بہت بڑا تہوار تھا، اور اسرائیل کا ہر ایک شخص جہاں کہیں بھی وہ دنیا کے کونے میں رہتا تھا، اس تہوار پر وہ اپنے ملک میں، خدا کے گھر میں، اپنے لوگوں میں، اپنی قوم میں اور اپنے آباء و اجداد کی سرزمین پر آنا اس کو لازمی ہوتا تھا اور وہ آتے تھے۔ بڑا جوش تھا اس تہوار میں، اس عید میں۔ یہ غم، دکھ، غصہ اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ یہ عید منائی جاتی تھی۔ غم یہ تھا کہ ان کے آباء و اجداد کے ساتھ مصر میں کیا ہوا، دکھ یہ تھا کہ ان کے آباء و اجداد بیابان میں خدا سے منحرف رہے، اور ان کو خوشی یہ تھی کہ آج خداوند نے ان کی سنی ہے، ان کو یاد کیا ہے، آزادی دلائی ہے، رہائی دی ہے اور اس ملک کے مالک بنا دیا ہے۔ اس دور کے حساب سے بڑی قلیل سی دنیا تھی، چھوٹی سی دنیا تھی، اور اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے اعمال کی کتاب اس کا 2 باب، اس کی 5ویں، 9ویں اور 10ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الیامی، مسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپدیکسیا اور پینتوس اور آسیا اور فروگیا اور پمفیلیا اور مصر اور لگوا کے علاقہ کے رہنے والے ہیں، جو کریتے کی طرف ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مریض اور کریتی اور عرب ہیں۔ کم و بیش یہ 16 ملکوں کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ 16 ملکوں سے یہودی جو ہیں اپنی اپنی زبان کے اندر آج خدا کا کلام سن رہے ہیں اور حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک بڑا حادثہ گزرتا ہے، وہاں پر خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا جاتا ہے۔ کمزور، لاچار، غریب اور مستحق طبقہ جو ہے وہ اس کی جے جے کار پکارتا ہے۔ فریسی کہتے ہیں کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، اور اس جوش اور جذبے میں ہر شخص ہمیں شامل دکھائی دیتا ہے۔ کوئی چاہتا ہے اس نے ہیکل کی صفائی کی ہے، اس لیے آج سے ہمارا یہی قائد ہے، ہمارا یہی رہنما ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ ہمیں آج دنیا سے جو ہے غلامی سے جو ہے رہائی دے گا۔ کچھ کا خیال یہ ہے یہ تو ہمارا تختہ الٹ دے گا، یہ ہمارے مخالف ہو جائے گا، ہم سے لوگ دور بھاگ جائیں گے، ہم کیا کریں گے۔ اس لیے ہر ایک جو ہے اپنے مفاد کی طرف ہمیں بھاگتا دکھائی دیتا ہے۔ تو 16 ممالک کے لوگ
इस त्योहार पर यरूशलेम में रह रहे थे और ये त्योहार कम पेश 7 दिन और 14 दिन और एकदम इसके बाद 50वें दिन ईद पेंतिकोस्त की ईद आ जाती थी। तो लोग लंबे डेरे डालते थे, यरूशलेम के अंदर आकर लंबा रहते थे ताकि वो इन त्योहारों को मनाएं। लेकिन आज जब हम इस विरद में आते हैं तो हमें क्या इस विरद में से मिलता है? क्या हमें इस बात के बारे में सिर्फ जानना जरूरी है कि खुदावंद ने हैकल को साफ किया? बल्कि कलामे मुकद्दस जहां पर भी बात करता है वो हमारे लिए 2 मानों में बात करता है। वो जो हो रहा है वो हमें दिखाता है और वो जो हमारे अंदर बातन में होने वाला है वो हमें दिखाता है। तो पौलुस रसूल जो है वो यही कहता है कि अपनी हैकल को साफ रखे। वो कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? और वो चाहता है कि आपकी ख्वाबगाह जो है वो पाक रहे। जब ख्वाबगाह पर हम बात करते हैं तो ख्वाबगाह है हमारे तसव्वुरात, हमारे ख्यालात, हमारी सोच और हमारा वो एहसासात जिसके सबब से हम अपने आप को दूसरी जगहों के ऊपर मसरूफ रखते हैं, हम उनके साथ जोड़ते हैं अपने आप को। तो खुदा का कलाम कहता है तेरी ख्वाबगाह पाक रहे क्योंकि खुदा उसमें चलता फिरता है। तो हैकल को बहुत सारे मकाशफाती अंदाज में देखा जा सकता है, लेकिन मैं आपके सामने एक रखना चाहता हूं जिसका हवाला खुदावंद ने दिया। खुदावंद ने उस बात को पूरा करने के लिए हैकल के अंदर जो है तजदीदी अमल जो है उसको शुरू किया। जबूर की किताब उसका 69वां जबूर उसकी नामी है, क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई और तुझको मलामत करने वालों की मलामतें मुझ पर आ पड़ी। और यहां पर हम इस विरद में आज एक मार्फती किरदार जो है उसको देखते हैं। 4 किरदार हैं यहां पर जो मुखातब किए गए हैं। नंबर 1, भेड़े। अच्छा जानवर है, लेकिन ये भेड़ कलामे मुकद्दस में बहुत जगहों के ऊपर कभी एक आदमी को, कभी एक कौम को और कभी दुनिया को बयान करती है, ईमानदारों को बयान करती है। और जब ये कौम को बयान करती है तो आइए सुने। दूसरा तवारीख 18वां बाब उसकी 16वीं है। जब अखियब और यहूशफत जंग के लिए जो है वो अपनी एक मीटिंग में बैठे हुए थे तो बहुत 450 नबी, बाल का नबी, इज़बल का नबी ये कह रहा था कि तू जीतेगा। लेकिन यहूशफत शाह यहूदा कहने लगा यहां पर कोई खुदा का नबी नहीं है। तो अखियब कहने लगा नहीं एक है, उसने कभी मेरे हक में अच्छी बात नहीं कही। वो जब भी बोला है मेरे खिलाफ ही बोला है, उसने जब भी किया है मेरी बात को रद्द किया है। तो यहूशफत कहने लगा उसको जरा बुला लाए। तो उसको बुलाया गया। जब उसको बुलाया गया तो उसको बुलाने वालों ने कहा बादशाह की फतह का नारा मारना, बादशाह को फतह की खुशखबरी देना। उसने कहा ठीक है दे दूंगा। और जब आया तो उसने फतह की खुशखबरी दी, लेकिन बादशाह का दिल नहीं मान रहा।
क्योंकि बादशाह को पता है हैकल गंदी है, बादशाह को पता है हैकल में गलाजत है, बादशाह को पता है खुदा मेरे साथ नहीं है, बादशाह को पता है मैं खुदा के साथ नहीं हूं। यहोशफत कहने लगा, जो खुदा ने तुझे कहा है वो हमें बता। तो उसने बोला, दूसरा तवारीख 18वां बाब 16वीं आयत, उसने कहा, मैंने सब बनी इस्राएल को पहाड़ों पर उन भेड़ों की मानंद परागंदा देखा जिनका कोई चरवाहा ना हो, और खुदावंद ने कहा उनका कोई मालिक नहीं, सो इनमें से हर शख्स अपने घर को सलामत लौट जाए। इसका मतलब ये था बादशाह हलाक हो जाएगा, शाह इस्राएल मर जाएगा। तो हमने देखा कि भेड़ जो है ये दुनिया को और कौम को बयान करती है, फिर भेड़ जो है वो ईमानदार को बयान करती है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की अंजील 10वां बाब 16वीं आयत में, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है, और वो मेरी आवाज सुनेगी, फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। ईमानदारों को भेड़ के साथ तशबीह दी गई है। और फिर अकेले आदमी को जबूर की किताब उसका 119वां जबूर 176वीं आयत, मैं खोई हुई भेड़ की मानंद भटक गया हूं, अपने बंदा को तलाश कर, क्योंकि मैं तेरे फरमान को नहीं भूलता। 3 जगह पर हमने भेड़ को देखा, कौम, ईमानदार और एक शख्स। आज हम अपने अंदर उन बातों पर गौर करें, उन भेड़ों पर गौर करें जो बज़ाहिर तो वो हमें अपनी तरक्की के लिए नजर आती हैं, लेकिन वो हमारी तरक्की में सबसे ज्यादा बड़ी रुकावट है। इसलिए खुदावंद ने कहा कि मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो ना बनाओ। ये उस वक्त तक अच्छी हैं भेड़ें जब तक ये अपने मुफाद के लिए काम नहीं करती, जब तक ये खुदा के लिए काम करती हैं, जब तक ये खुदा के पीछे चलती हैं। अगर वो अपने मुफाद के पीछे चलने लगे तो ये मार्फती बात है, वो अपने काम से हट जाती है। दूसरा जो है यहां पर किरदार, वो है बैल का। और मलाकी की किताब 4वां बाब 2री आयत, लेकिन तुम जो मेरे नाम की ताजीम करते हो, आफताबे सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गौ खाना के बछड़ों की मानद कूदो फांदोगे। गौ खाना के बछड़ों की मानद, ये ताइब लोगों को कहा जा रहा है, ये उन लोगों को कहा जा रहा है जो वापस आने की जुस्तजू रखते हैं, अच्छे लोग हैं, कौम के लोग हैं। लेकिन बैल शाह बाबल के इक्तदार को भी कहा गया है, क्योंकि बाबल के मुल्क का सबसे बड़ा जो खुदा है वो बैल था। वहां पर बैल की पूजा की जाती थी, बैल को माना जाता था। यिर्मयाह की किताब 51 बाब 44वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं बाबल में बैल को सजा दूंगा और जो कुछ वो निगल गया है उसके मुंह से निकालूंगा, फिर कौमें उसकी तरफ रवाना होंगी। हाँ, बाबल की फसील गिर जाएगी। तो आज हमारी हैकल में एक बादशाह की तबीयत, एक खुद सर की तबीयत, एक
इक़्तिदार की हवस की तबीयत अगर हमारे अंदर मौजूद है तो खुदावंद चाहता है आज ही हैकल की सफाई कीजिए, आज ही हैकल को साफ कीजिए, क्योंकि वो कहता है पहला ग्रंथियों 9वां बाब 9वीं और 10वीं आयत, चुनाचे मूसा की तौरात में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या खुदा को बैलों की फिक्र है या खास हमारे वास्ते ये फरमाता है? हाँ, ये हमारे वास्ते लिखा गया क्योंकि मुनासिब है कि जोतने वाला उम्मीद पर जोते और दाएं चलाने वाला हिस्सा पाने की उम्मीद पर दाएं चलाए। ये खादमों के लिए, ये क़यादत के लिए, ये रहनुमाओं के लिए बात है कलाम मुकद्दस में। अगर रहनुमा जो है वो आपके लिए तरक्की का सबब नहीं बन रहा तो इसका मतलब है हैकल को साफ करने की जरूरत जो है वो आ पहुंची है। और तीसरे नंबर पर है सराफ, सुनार। ये जो पैसे का कारोबार करते हैं, ये जो पैसे जो हैं उनके बारे में, उनके मुतालिक काम करते हैं। हैकल के अंदर उस वक्त ये कोई मानी नहीं है कि वो कहाँ थे, किस हिस्से में बैठते थे, कहाँ पर उनका अड्डा लगाया हुआ था। वो उस वक्त हैकल के अंदर पूरे इख्तियार के साथ बैठे थे क्योंकि वो टैक्स देते थे और हर बंदा उस जगह पर बैठता है जहां पर सबसे ज्यादा लोग उसको मयस्सर हो। तो ऐसा ही हैकल में भी जगह से खींचातानी होती थी और फरीसी उससे ज्यादा मुआवजा लेते थे, इस तरह की बातों को पैदा करके। और सराफ, सुनार, दौलत के पीछे भागने वाले, पैसा ही जिनके लिए सब कुछ है, और वो उनके बारे में खुदावंद कहता है लूका की इंजील उसका 19वां बाब 17वीं है, उसने उससे कहा आए अच्छे नौकर, शाबाश, इसलिए कि तू नहायत थोड़े में दयानतदार निकला, अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। और फिर पौलुस रसूल कहते हैं पहला ग्रंथियों 4वां बाब 2री आयत, और यहां मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। अगर मेरी दयानतदारी मुझे कुछ लालच की बिना पर मुझे कुछ नापाकी की तरफ धकेल रही है, अपने मुफाद की तरफ धकेल रही है, तो मौका आ गया है कि हैकल को साफ किया जाए। मौका आ गया है कि अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द किया जाए ताकि वो उसको साफ और अपने बाप के लायक रहने के लिए तैयार कर सके। और चौथे नंबर पर है कबूतर, खुदपरस्त, खुदगर्ज, लालची और तकब्बर के साथ जोड़ा जाने वाला। हमारे ज़हन में सवाल उठ सकता है कि बहुत जगह पर इसको देखा गया है। हाँ, बिल्कुल अच्छी जगह पर भी देखा गया है, लेकिन उस वक्त ये अच्छा नहीं है जब ये अपने मुफाद के ऊपर काम करे। यिर्मयाह की किताब उसका 48वां बाब 28वीं और 29वीं है। आए मुआब के बशिंदो, शहरों को छोड़ दो और चट्टान पर जा बसो, और कबूतर की मानद बनो जो गहरे गार के मुंह के किनारे पर आशियाना बनाता है। हमने मुआब का तकब्बर सुना है, वो नहायत मगरूर है, उसकी गुस्ताखी भी और उसकी शेखी और उसका घमंड और उसके दिल का तकब्बुर। इससे हमें बाज रहना है, इससे हमें खुदा की हैकल को पाक रखना है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के पैरों में उसकी जगह पर खड़े हैं तो कोड़ा आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप हैकल हैं
तो उसको पूरा इख्तियार दे कि वो उसकी सफाई करे, क्योंकि अगर फरीसियों के हाथ में ये रहा तो वो इसे और ज्यादा नापाक करेंगे, और अगर अवाम के हाथ में रहा तो वो अपनी सहूलियात के पीछे भागते हुए इसको गलाजत से भर देंगे, और अपने पीछे आमदनी का अंबार लगाने वालों के अगर ये हाथ में रहा तो वो इस हैकल को उजाड़ देंगे। इसलिए खुदावंद ने कहा, लिखा है कि मेरे बाप का घर दुआ का घर है, कौमों की तस्कीन का घर है, कौमों की पनाह है ये, और तुमने इसे छीना छप्पी का घर बना दिया है, तुमने इसे मवाद परस्ती का घर बना दिया है, तुमने इसे जुल्म और सितम से भर दिया है, बल्कि तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। आइए आज अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या हमारी हैकल की तकदीस होने वाली है? क्या हमारी हैकल को साफ किया जाना चाहिए? क्या हमारी हैकल साफ होने वाली है? क्या हमारा जहन और दिल सफाई के लिए तैयार है कि हम उसके अंदर से उन बैलों को जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, उन भेड़ों को जो अपनी सहूलत पर बात करती हैं, उन सराफों को जो दौलत के अंबार के पीछे भागते हैं, उन तकब्बुर अमेज तबीयतों को, कबूतरों को अपनी हैकल से निकाले, ताकि खुदा का वो मस्कन बन सके, खुदा की वो आरामगाह बन सके, खुदा के जलाल का सबब ठहरे। खुदावंद आपको इस कलाम के सबब से बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमाएं तो दरख्वास्त की जाती है कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमाते बरक़ात के साथ रुखसत करें। फिर खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम एक दफ़ा फिर खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद करते हैं तेरे पैगाम के लिए। तेरे खुदावंद अपने बड़े जलाल के लिए हमें तैयार कर, और खुदावंद सबको अपने हाथ में महफूज रख के अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। तेरे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। जो भाई हमारे दरमियान नहीं, खुदावंद उनको और बहनों को खुदावंद तू अपने हाथ से शफा दे। रूत को खुदावंद तेरे हाथ में देते हैं, खुदावंद तो उसकी हिफाजत कर, उसको शफा दे और तेरे प्यारे नाम को जलाल मिले। तेरे खुदावंद बड़ो परवीन को खुदावंद तू टच कर और खुदावंद उसको ताकत दे, तंदुरुस्ती दे, खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। तो प्यारे बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद हो खुदावंद, अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।